Okay, students. So, Industrial Policy Resolution 1956. We are going to study about this. Industrial Policy Resolution. According to this policy, Government of India increased the role of public sector in the industrial development of the economy. Public sector का जो role था, that was increased after this industrial policy. The main objective of this resolution is to accelerate the growth of industrial sector and prevent the concentration of wealth and income in hand of few individuals only. तो दो मेन एम थे. फर्स्ट एम क्या था? जस्ट टू ग्रो द इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो फर्स्ट एम वाज ग्रो द इंडस्ट्रियल सेक्टर and second was prevent the concentration of wealth. Prevent the concentration of wealth in the hand of few individuals. कुछ लोगों के पास. पहला था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की जाए. सेकेंड जो था वो था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में ना हो करके वो बाकी पूरी पब्लिक के हाथ में हो, उसका जो उस वजह से क्या किया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाया गया 1956 में. यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला है कि दिस पॉलिसीज वर मेड बाय द सजेशन ऑफ पीसी महलनोबिस. पीसी he was an economist. It is a very popular name in the history of India's economy. So, who was P.C. Mahalanobis? P.C. Mahalanobis is also known as the architect of India's planning. It is 1 marks question. Who is known as the architect of India's planning? So, P.C. Mahalanobis is known as the architect of India's planning. Mahalanobis, P.C. Mahalanobis, his full name is Prashant Chandra Mahalanobis, and he established the Indian Statistical Institute ISI in Calcutta and started a general Sankhya. So, PC Mahalanobis ने कुछ suggestions दिए. उन suggestions के बेस पर second five-year plan बना, and in that second five-year plan these industrial resolution was decided. That's why he is known as the architect of India's planning. So, what was the features of IPR 1956? So, the features of IPR 1956 was 3-tier classification of industries. According to this, the industrial policy 1956 divides total industries into 3 categories. All the industries were divided into 3 categories, and that categories may be A, B and C. A, B and C. 3 type of categories were there, and first category was having 17 industries, and second category was having 12 industries, and rest all were there in third category. So, in first type of industries means which is known as Schedule A or Group A. In Group A there were 17 industries, and that industries were completely controlled by public sector. यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करती थी, मीन्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी. सेकेंड शेड्यूल जो था, सेकेंड शेड्यूल में these were those industries which could be established both as a private and public sector. इसको प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर यहाँ पर इसको ओपन कर सकते थे, बट द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज मोर डोमिनेंट देन द प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पर कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर केवल इन्वेस्ट कर सकता था. दे वर जस्ट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दैट, बट पब्लिक सेक्टर वॉज हैविंग द फुल्ली कंट्रोल ओवर दैट. मीन्स कोई भी प्राइवेट पर्सन उसको इस्टेब्लिश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट उसमें क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, किस क्वालिटी में होगा, ऑल दैट डिसीजंस वर टेकन बाय द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट उसके डिसीजन लेती थी. नेक्स्ट था कैटेगरी सी. सी कैटेगरीज में जितनी इंडस्ट्रीज 17 और 12 यानी कि 29 इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी दैट वर operated, that were allowed to operate by
प्राइवेट सेक्टर। तो सी कैटेगरी की इंडस्ट्रीज थी दैट वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, अब जो ओपन थी यहाँ पर उनके लिए भी क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, उन पर भी लाइसेंसिंग लगाई गई। मीन्स इट रिफर्स टू अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर ओपनिंग और फॉर एक्सपेंडिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट। 1956 में जो रेजोल्यूशन आया, पॉलिसी रेजोल्यूशन इंडस्ट्रीज का, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए या अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने या घटाने के लिए रिटन परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी। कोई भी नई इंडस्ट्री तब तक सरवाइव नहीं कर सकती जब तक उसके पास लाइसेंस ना हो। लाइसेंस वॉज ऑल्सो नीडेड फॉर एक्सटेंडिंग, कोई भी अगर एक्सटेंड कर रहा है या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉर दैट लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड, लाइसेंस वाज अ कंपल्सरी थिंग। नेक्स्ट वाज इंडस्ट्रियल कंसेशन। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया गया, उनको कुछ इनिशिएटिव्स दिए गए, लाइक उनको टैक्स में छूट दी गई, सब्सिडीज प्रोवाइड कराई गई, लो रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई गई, ट्रांसपोर्टेशन ईजी कर दिया गया उनके लिए। ऐसी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज थी बेसिकली जो इंडस्ट्रीज बैकवर्ड या रूरल एरियाज में डेवलप हो रही थी, जो बैकवर्ड या रूरल यानी गांव वगैरह में जो स्टेब्लिश हो रही थी या पिछड़े हुए जगहों पर, दैट इंडस्ट्रीज वर हैविंग सम कंसेशन इन इलेक्ट्रिसिटी, इन टैक्स एंड सम अदर सब्सिडीज वर देयर व्हिच दे वर हैविंग।